student, today I am going to teach you the rest part of the logarithm. Student, if you think I am teaching well, please like my video, share my video and also subscribe it. Let's start. 3 standard law of logarithms. आज हम 3 standard laws logarithm से related पढ़ेंगे, ठीक है? उसमें पहला है प्रोडक्टिव लॉ. प्रोडक्ट लॉ क्या है? log of mn to the base a is always equal to log of m to the base a plus log of n to the base a. Okay, and if log mn अगर हमारे पास 2 से ज्यादा टर्म्स हैं, ओके, m n p to the base a, okay, then we write it log of m to the base a plus log of n to the base a plus log of p to the base a and so on. Quotient's law. Second, log of m over n to the base a is always equal to log of m base a minus log of n base a. Third is power law. Power law क्या कहता है कि log of m to the power n base a is always equal to, ये n बाहर आएगा, n log of m to the base a. ओके, एंड कुछ और भी हैं पॉइंट्स जो कि हमें याद रखने हैं. log of a to the power x to the base a is equal to, देखिए ये x क्या आएगा, इधर आएगा x, इसको हम ऐसे लिखेंगे x log of a to the base a, and we know that log of a to the base a is equal to 1, so log of a to the power x of base a is equal to x. Okay, and second is a to the power. ओके, अगर a का पावर है, a to the power log of x to the base a is equal to x. ठीक है, कैसे? बेसिक चेंजिंग फॉर्मूला. log of m to the base a is equal to log of m to the base b upon log of a to the base b. m is greater than 0, a, b is greater than 0, a is not equal to 1 and b is not equal to 1. ठीक है, put m is equal to b in 1. So log of m, okay, to the base b is equal to log of m to the base a into log of a to the base b. Second, log of a to the base b into log of b to the base a is equal to 1, and third one is log of a to the base b is equal to 1 upon log of b to the base a. Okay, now we are going to solve some questions related to these formula. Okay, first express करना है हमें log of a square c upon under root b to the base 10. Okay, इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? log of a base 10, log of b base 10 and log of c base 10. Now log of a square c over under root b to the base 10, हम इसे कैसे लिखेंगे? हमें पता है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? m अपॉन n का फॉर्मूला. We know that log of m over n base a is always equal to log of m base a minus log of n base a. We apply here this formula. So log of a square c base 10 minus log of
अंडर रूट बी, ओके, बेस 10। एंड अंडर रूट बी को हम क्या लिखेंगे, बी टू द पावर 1/2। सो log of a square c to the base 10 minus log of b to the power 1/2 and base 10। और यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, log b to the power 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 log of b बेस 10। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे ये लगेगा, log of a to the power x to the base a is equal to x log a to the base a। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, तो log of a square c to the base 10 minus 1/2 log of b to the base 10। और अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, a स्क्वायर c है, a स्क्वायर डॉट c, मतलब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, log of m इंटू n बेस a इज इक्वल टू log of m to the base a प्लस log of n to the base a। तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे log of a स्क्वायर बेस 10 प्लस log of c बेस 10 माइनस 1/2 log b बेस 10। सो अब यहाँ क्या है, ये a स्क्वायर है, हम इसको कैसे लिखेंगे, इसकी तरह इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 log of a बेस 10 प्लस log of c बेस 10 माइनस 1/2 log of b बेस 10। It is our answer. It is in form of log of a base 10 log of c base 10 log of b base 10। Now we take another questions. Express as a single logarithm। हमारे पास क्वेश्चन है 2 + 1/2 log of 9 base 10 minus 2 log of 5 base 10। हम इसे सॉल्व करना है, हमें एज अ सिंगल लॉगरिथम सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो 2 दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम लिख सकते हैं ना 2 × 1 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 1/2 log of 9 base 10 माइनस 2 log 5 base 10। ठीक है, और हमें ये पता है कि log of 10 base 10 इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ 1 जो है उसकी जगह हम क्या लिख दें, ये लिख दें। ओके, तो 2 log 10 log of 10 base 10 प्लस 1/2 log of 9 base 10 माइनस 2 log 5 base 10। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये 2 जो है 10 के पावर में कर दें। अब हमें पता है n log of m to the base a is written as log m to the power n base a। ठीक है, तो यहाँ अब हम इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम अब इस फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, log of 10 to the power 2 base 10 plus log of 9 to the power 1/2 base 10 minus log of 5 to the power 2 base 10। okay, and we know that 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। सो सिंपल, log of 10 to the power 2 base 10 plus log of 3 to the power 2 to the power 1/2 base 10 minus log of 5 to the power 2 base 10। ठीक है, फिर log of 10 to the power 2 to the base 10 plus log of log 3 2 into 1/2 minus log of 5 square base
10। ठीक है, अब एक बार ये देखिए ये कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ log 3 बचेगा। तो log ऑफ 10 स्क्वायर बेस 10 प्लस log 3 माइनस log 5 स्क्वायर बेस 10। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? log m of a plus log n of a is always equal to log mn बेस a। यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो log 10 स्क्वायर इंटू 3 ओके माइनस log 5 स्क्वायर बेस 10। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे log m माइनस log n ये इक्वल टू log m बाई n बेस a। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। सो वी राइट दिस इन दिस फॉर्म, देन log 10 स्क्वायर इंटू 3 अपॉन 5 स्क्वायर बेस 10। ठीक है, फिर log 10 इंटू 10 स्क्वायर 10 2 टाइम्स 10 इंटू 3 अपॉन 5 5 जा 25 बेस 10। ओके, देन वी सॉल्व इट। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 20, 3 60, 60 बाई 5 एंड 12। ठीक है, तो क्या आया? log 12 बेस 10 आया। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। इसे हम ऐसे भी काट सकते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 3 जा 12। सिंपल, log 12 base 10, it is our answer. Now we take another question. If log 7 minus log 2 plus log 16 minus 2 log 3 minus log 7 by 45 इक्वल 1 प्लस log n। ठीक है, हमें निकालनी है वैल्यू n की, फाइंड वैल्यू n। सो सॉल्व इट। गिवन हमें क्या क्या दिया है, हम पहले उसे लिख लेते हैं। log 7 माइनस log 2 प्लस log 16 माइनस 2 log 3 माइनस log 7 अपॉन 45 इज इक्वल टू 1 प्लस log n। ठीक है, अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखिए जो प्लस है हमें एक साथ कर लेते हैं। तो log 7 प्लस log 16 माइनस log 2 माइनस 2 log 3 माइनस log 7 अपॉन 45। ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस log n। ठीक है, अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? log m प्लस n इज इक्वल टू log m प्लस log n इज इक्वल टू log ऑफ mn टू द बेस a। तो हम यहाँ इस तरह इसको लिखेंगे। तो log 7 इंटू 16। ठीक है, माइनस, और यहाँ हम देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है। तो इस माइनस को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या हो जाएगा? अंदर हो जाएगा log 2 प्लस 2 log 3 प्लस log 7 ओवर 45 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस log n। ठीक, और हम इस 1 को क्या लिख सकते हैं? इस 1 को हम लिख सकते हैं log 10। क्यों? क्योंकि log 10 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ना log 7 इंटू 16 माइनस log, इसमें हम फिर m प्लस n प्लस p है तो इसको m n p के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब 2 ना, एक लाइन और यहाँ पे लिखते हैं log 2 प्लस ये चीज यहाँ log 3 टू द पावर 2 प्लस log 7 अपॉन 45 इज इक्वल टू log 10 प्लस log n। ठीक है, अब हम यहाँ पे m इंटू n इंटू p का फॉर्मूला लगाते हैं। तो log 7 इंटू 16 माइनस log 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 अपॉन 45 इज इक्वल टू log
10 प्लस log n, ठीक है। और यहाँ भी वही फॉर्मूला लग जाएगा log m प्लस n का, ठीक है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, log 10 इंटू n लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे लगेगा log m माइनस log n इज इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n टू द बेस a, यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा। देन वी राइट दिस log 7 इंटू 16 अपॉन 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 7 अपॉन 45, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी log है, लेफ्ट हैंड साइड में भी log है, राइट हैंड साइड में भी log है, दोनों हम कैंसिल कर देते हैं। तो 7 इंटू 16, ओके, 7 इंटू 16 अपॉन 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 7 अपॉन 45 इक्वल्स 10n, ठीक है। फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, ये हमारा ऊपर जाएगा 7 इंटू 16 इंटू 45, 2 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 7 इज इक्वल टू 10n, ठीक है। अभी सिंप्लीफाइड, 9 5 जा 45, 2 8 जा 16, 7 1 जा 7, ये कट गया, 8 5 जा आता है 40, 40 इज इक्वल टू 10n। सो n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू 40 अपॉन 10, n इज इक्वल टू 4। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, n इज इक्वल टू 4 आ गई। नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन, इफ log of a upon b minus c is equal to log of b upon c minus a is equal to log of c upon a minus b। अगर ये चीज़ें हमें दी हुई हैं तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट a to the power a into b to the power b into c to the power c is 1। कैसे करेंगे, नाउ लेट, पहले हम क्या करते हैं, हम इन तीनों को के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। log ऑफ a अपॉन b माइनस c इज इक्वल टू log ऑफ b अपॉन c माइनस a इज इक्वल टू log ऑफ c अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू k के इक्विवेलेंट कर लेते हैं, फिर एक एक टर्म को की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। log a इज इक्वल टू, ये इधर गया, k इन ब्रैकेट b माइनस c। उसी तरह log b की वैल्यू हम ले लेते हैं, log b इज इक्वल टू k c माइनस a, और उसी तरह log c की वैल्यू ले लेते हैं, तो ये इधर गया k a माइनस b, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में है, ये हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म में है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 में log a है, यहाँ पे हम a का मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों साइड में हम a का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा a log a इक्वल्स टू k a b माइनस c, ठीक है। 4 मान लेते हैं इसको, फिर b, इक्वेशन 2 में हम b का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो b log b इक्वल्स के बी c माइनस a, 5 इक्वेशंस, एंड 3 में हम c का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो c log c इज इक्वल टू के सी a माइनस b, इसके 6 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशन 4 5 6 है इसको हम ऐड कर देते हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन 4 5 6, देन वी गेट a log a प्लस b log b प्लस c log c इज इक्वल टू के a इन ब्रैकेट b माइनस c प्लस के बी c माइनस a प्लस के सी a माइनस b, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि के a का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, के बी का इसमें होगा और के सी का इस ब्रैकेट में होगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को हम कैसे लिखेंगे, के ए बी माइनस के ए सी प्लस के बी सी माइनस के ए बी प्लस के ए सी माइनस के बी सी, ठीक है। अब और इसे हम क्या लिख सकते हैं, log a टू द पावर a प्लस log b टू द पावर b प्लस log c टू द पावर c, ठीक है। फिर अब देखिए
log a to the power a plus log b to the power b plus log c to the power c equals to kab minus kac plus kbc minus kab प्लस KAC माइनस KBC। अब यहाँ पे प्लस माइनस कटेगा, माइनस KAC प्लस KAC प्लस KB माइनस KAB। ठीक है, तो यहाँ क्या आया, राइट हैंड साइड में 0 आया। ठीक है, और यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, log m प्लस log n प्लस log p इज इक्वल टू log m n p। तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। इट मीन्स log a टू द पावर a इंटू b टू द पावर b इंटू c टू द पावर c, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर अब हम ऐसे लिखते हैं, तो ये होगा हमारा a टू द पावर a इंटू b टू द पावर b इंटू c टू द पावर c इज इक्वल टू log इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो नाउ वी प्रूव दैट a टू द पावर a इंटू b टू द पावर b इंटू c टू द पावर c इज इक्वल टू 1। ये जो है ना, देखिए ये जो 0 है ये log 1 हो जाए, इस 0 को हम log 1 के फॉर्म में, जैसे log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। सो हियर इज log एंड हियर ऑल्सो log, तो log एंड log कैंसिल हो जाएगा, तो a टू द पावर a इंटू b टू द पावर b इंटू c टू द पावर c is equal to 1. This is our answer. Now we come to an end. So if you like my videos, please share it and also subscribe it. Thank you.